Hi everyone, how are you all? Hi, ma'am. We are good. How are you? I'm also good too. How about others? Hi, I'm good. And what about you? I'm also good too. Okay. Yeah, I. All right. 1 second, guys. I'll be just opening up the PPT for today. Okay. So before starting further, can we do a quick recap of the last session, what we have discussed? So this time, let me pick Supinder. You can give us a quick recap for the last session. Okay. So in yesterday's class, we have discussed about the what we have studied in the last class, like CCNP, CC, NA, and CCIE. After that, we have start with the some network fundamentals. Like here, Hmm. we have studied how network works, how devices involved, how rules and protocols we used. So we basically learned the concepts of network, the flow, how it works. So and after that, we have learned some new devices like switches, routers, how our Hmm. how we are doing work with routers, switch, how they are connected with, how network is connected. Hmm. And then we have got some knowledge about how we can draw our network. Okay, Hmm. after that, then we have learned about P2P network, what is some basic terms, internet, routers, Hmm. switches. Yes. Hmm. So this was all about yesterday. And the third point, I think, how the rules and protocols are used, we have not covered it yet. What? Pardon again? The last network fundamental, how rules and protocols we used in the network, we have not covered it yet. Yeah, because that is the routing protocols that's come under the router section. Yeah. Okay. Okay. So thanks for giving us the insight, Supinder, about the yesterday session. So let's move forward for the today talk, what we have it out. Okay. Okay, fine. So welcome to the day two plan for today. So I'll be sharing my screen with you in order to discuss the rest of the part. Okay. So once my screen is visible, do let me know, guys. Is it visible? Yes, it's visible. Okay. तो कल हमने यहाँ तक वी हैव स्टडीड अबाउट द एंड डिवाइसेस सो वी विल बी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड अवर टॉक टू द intermediary network devices. Okay, so now what is your intermediary network devices was about to be. Okay, तो ये क्या होते हैं, like these devices are responsible or they are responsible to connect the end devices. So if you wish to say intermediary devices, so I'm gonna write like this way. Let me erase. Okay, so I will be going to write intermediary devices. Okay, so intermediary devices, what they are, guys, so these are your devices. Okay, which is responsible, or you can say that sits between the end devices. Okay, so you know your end devices would be your computers, PCs, laptops, right? So these devices are those devices which sits between your end devices. So if I wish to tell you about the end devices, that is your computers as an example. Correct? Right? And what they else they do, they will be also help you out to direct, manage, as well as to filter or secure the data traffic as it is gonna moves across a network, you can say, for the same.
ओके, सो इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस ये वो वाली डिवाइसेस हैं जो आपके एंड डिवाइसेस के बीच में रहती हैं, लाइक योर राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, ठीक है। एंड व्हाट दे हेल्प यू आउट, ये हेल्प करती हैं कि आपको डायरेक्ट करना, मैनेज करना, फिल्टर करना, और आपका जो ट्रैफिक है वो सिक्योरली अदर साइड पे रिसीव हो जाए, और अगर उस साइड से दूसरी साइड पे आ रहा है तो वो भी सिक्योरली जाए। सो सिक्योर data traffic movable from here to there and there to here across the network should be there, ठीक है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस First बी device I will be going to write, that is your router. स्क्वायर माइनस बी ठीक है, स्क्वायर ही ए प्लस बी so ए what माइनस is बी your होगा। router? अभी कल we have discussed about the router function. Can anybody tell me what is the function of the router? which help us to connect to the external network. ध्यान से Okay, समझना। so we will be going to write the router is responsible to connect the different networks together. साइन थीटा So for example, if I wish to take, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। We have a home network, ठीक है? प्लस कॉस थीटा माइनस Correct. We all are in the home network and we wish to connect to the internet. So with the help of a router, you are able to do it, na? Correct? तो ध्यान से Yes. सुन। Right. So the router is responsible to connect different networks. Okay. What else the router will do? तो अभी we have started a device, networking devices का हमने start किया है, that we are discussing about this router. Okay. हेलो मैम, So, सॉरी टू इंटरप्ट। yes. हिम्मत सिंह, आपका माइक एंड वीडियो दोनों ऑन है, सो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर दीजिए। बस साइन चाहिए साइन चाहिए हिम्मत सिंह आप अपना प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक और साइन कॉस वीडियो। ठीक तो है। वो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं 1 को लिख दूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वहां पे a प्लस बी ए माइनस बी क्वांटिटी वाली आ जाएगी। Okay. Now it's better. Okay. All right. So now we are responsible to connect different networks. ठीक है, तो इसके अलावा what the router will do, guys, that will help you to choose the best path. ठीक है, for the data packets to travel. तो ये आपको एक हेल्प करता है कि बेस्ट पाथ चूज करने के लिए कि कौन सा पाथ बेस्ट है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो यू कैन कंसीडर सोर्स टू डेस्टिनेशन। If you wish to transfer the data or the packets, then you will be going to choose the best path. तो वो कौन सा आपको नेटवर्किंग डिवाइस हेल्प करेगा? That is your router. Okay. इसके साथ you have one more thing. Router will operates mainly at your layer number 3. ठीक है, अभी वी विल बी गोइंग टू कवर द ओएसआई लेयर्स, तो आपको पता लगेगा कि कितनी लेयर्स होती हैं नेटवर्किंग में व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द ओएसआई मॉडल। एज ऑफ नाउ आप ये अंडरस्टैंड करें कि राउटर जो है आपका एक डिवाइस, वो आपका लेयर नंबर 3 पे ऑपरेट करता है, जिसका नाम आपका होता है नेटवर्क लेयर। क्लियर? इज इट क्लियर अप टू देयर टू एवरीबडी गाइज? सभी को समझ आया व्हाट इज द राउटर, व्हाट इट डू, क्या करता है ये? Yeah, ma'am. ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड डिवाइस है इंटरमीडिएटरी, वो हमारी स्विच होती है। ठीक है, अब ये स्विच क्या करती है? अब स्विच का क्या काम है? दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट द डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल नेटवर्क। सो this is the work of a switch, so you can consider the LAN environment for the same. Or another than this, they will be going to work with the MAC addresses. तो ये यूज करती हैं आपके MAC addresses को to forward the data. Okay, what they use, they will be going to use the MAC addresses to forward the data. They are responsible to connect the devices within the same local network. एंड जब मैं इसकी बात करूं ये कहाँ पे ऑपरेट होती हैं, तो दे विल बी ऑपरेटिंग एट योर लेयर नंबर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल, दैट इज योर डाटा लिंक लेयर, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आपकी टोटल 7 लेयर्स होती हैं, तो मैं उनके हर एक की आपको फंक्शन बताऊंगी व्हेन वी कवर द ओएसआई मॉडल टॉपिक। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ यू शुड अंडरस्टैंड
राउटर आपका लेयर नंबर 3 पे ऑपरेट करता है, स्विच आपका लेयर नंबर 2 पे ऑपरेट करता है। ठीक है, क्लियर अप टू देयर गाइस? Yes, clear. ठीक है, Uh, अभी फॉर Ma'am, एग्जाम्पल मुझे आपको ये if दिखाना है, ठीक है, मुझे आपको uh, दिखाना है इन hello, रियल में। यस, मैम ये वाला मेरे को समझ नहीं आया इसमें जो ये है ना यूजेस मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा. हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब राउटर में आप क्या यूज करते हो? आईपी एड्रेसेस, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, स्विच आपके मैक एड्रेसेस यूज करता है टू फॉरवर्ड द डाटा। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है? ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मैक एड्रेस आपका कैसे दिखता है और ये क्या होता है। मैंने यहाँ पे राइट किया आईपी कन्फिग, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा मैक आई थिंक विजिबल नहीं है। लेट मी शो यू इन द टूल। ओके, तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस क्या है, राइट? और इसमें हम कैसे फॉरवर्ड करते हैं डाटा इन टर्म्स ऑफ स्विच, राइट? आपका ये क्वेश्चन है डियर, राइट? ठीक है, Yeah. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी दैट मैक एड्रेस इज योर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मैक एड्रेस इज अ यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर जो आपका होता है, ठीक है, दैट इज गोना बी असाइंड टू अ नेटवर्क इंटरफेस ऑन अ डिवाइस। नेटवर्क इंटरफेस ऑन आर डिवाइस। तो अभी मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी व्हाट इज दिस? द मैक एड्रेस इज योर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इट इज अ यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर। ठीक है, यूनिक होता है, हर एक का यूनिक। ओके, दैट इज असाइंड टू योर नेटवर्क इंटरफेस ऑन अ डिवाइस। ठीक है, अब ये जो टाइप ऑफ एड्रेस है जो आपका मैक एड्रेस है, ठीक है, इट इज योर हार्डवेयर बेस्ड। व्हाट इज इट? इट इज योर हार्डवेयर बेस्ड एड्रेस। ठीक है, तो ये कहाँ पे बर्न्ड होता है? ये आपके बर्न्ड होता है, लिखा होता है इनटू द नेटवर्क कार्ड, जो आपका एनआईसी कार्ड होता है। सो दैट इज गोना रिप्रेजेंट दिस वे आउट, दैट इज योर नेटवर्क कार्ड। ठीक है, another thing is that they will be gonna written in the hexadecimal format। ये कैसे लिखा होता है? इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपका मैक एड्रेस आपको दिखाते हैं ये। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हेक्साडेसिमल पार्ट। ठीक है, और आपका मैक एड्रेस जो है जर्नल आपका 6 बाइट्स की एंटिटी होती है। ठीक है, विच इज कंप्राइजेज ऑफ नियर बाय 48 बिट्स। ठीक है, तो ये आपके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है कि ये आपका मैक एड्रेस होता है, यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर असाइंड टू द नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, अब मैंने आपसे बात करी थी स्विच की, राइट? राइट, स्विच की बात की थी, करेक्ट? Yeah, कि ma'am. स्विच इज गोना फॉरवर्ड द डाटा विद द हेल्प ऑफ द मैक एड्रेसेस, करेक्ट है ना? तो स्विचेस क्या करते हैं, जब हम स्विच के साथ अपने 2 पीसी लगाते हैं, हमने एक पीसी लिया यहाँ पर और एक पीसी लिया यहाँ पर, ठीक है, और मैंने केबल ली और मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब आपको एक बात मैं बताया कि ये जो है यहाँ पर इनके पास यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर है, जो इनके नेटवर्क कार्ड है ना, उन्हीं के ऊपर वो होगा, करेक्ट? राइट, अभी मैंने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ मैंने ड्रॉ किया, डिजाइन को, एक स्विच लिया और 2 पीसी लगा दिए, राइट? करेक्ट, यही किया मैंने। यस गाइस, यही किया मैंने, राइट? तो Yeah. अभी मैं क्या करूंगी, अब मैं मैक एड्रेस देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं स्विच पे गई, मैंने कुछ नहीं किया और मैंने CLI में जाकर एक कमांड रन करी, शो मी द मैक एड्रेस।
मुझे मैक एड्रेस टेबल दिखाओ, तो मेरे पास कोई एंट्री नहीं आई बीच में। आई कोई एंट्री? इज देयर एनी एंट्री? नो। नो, नो एंट्री इज देयर। मुझे कोई मैक एड्रेस नहीं मिला यहाँ पर। अब मैक एड्रेस जो है वो कह रहा है कि इट्स अ यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर दैट असाइन टू द नेटवर्क इंटरफेस ऑन अ डिवाइस। तो अगर आप देखोगे ये नेटवर्क इंटरफेस है आपका, FA0/1, FA0/2, दीज आर द इंटरफेसेस ऑफ द स्विच, राइट? करेक्ट, यही इंटरफेसेस हैं, राइट? तो इन इंटरफेसेस के ऊपर आपको यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर असाइन होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस इफ यू आर वर्किंग विद द स्विच। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको एक बात बताई थी कल, जब भी आपके पीसी नेटवर्किंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है, राइट? विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से करते हो आप आइडेंटिफिकेशन उनकी? रिमेंबर? रिपीट करने एक बार, क्या बोला? आईपी एड्रेस देंगे हम इनको, राइट? ठीक है, यस, तभी तो ये पार्टिसिपेट करेंगे नेटवर्क में कि हाँ इनके डेफिनेटली। पास कुछ वजूद है, राइट? एंड दे हैव जी। समथिंग, राइट? तो हमने इसको आइडेंटिफिकेशन दी और हमने इसको भी आइडेंटिफिकेशन दी। ठीक है, अब ये रेडी हो गए हैं नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इनके पास अपना आईपी एड्रेस है, करेक्ट? राइट? यस। तो अब हम दोबारा से मैक एड्रेस चेक करते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे पास एंट्रीज भी आ जाएंगी। आर यू एबल टू सी दिस? तो हमारे पास कितनी एंट्रीज आई? 2 एंट्रीज आई। क्यों 2 एंट्रीज आई? क्योंकि हमारे पास 2 इंटरफेसेस थे, FA0/1 और FA0/2। ठीक है, तो दैट मैक एड्रेस इज अ यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर असाइन्ड इंटरफेस ऑन अ डिवाइस, हार्डवेयर बेस्ड, burned on the network card। बात करने के लिए नहीं तो अपना कान में लगाइए ना। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, अगर आप देखो ये फॉर्मेट कौन सा है आपका, पढ़ाई इसी 003। को ना समझ में आएगा, मुझे कुछ समझ में आना है। हेक्साडेसिमल है ना ये आपका? यस गाइस? यस, यस। मुझे इसमें एक चीज समझ नहीं आया, जैसे आप बोल रहे हो कि हम इसको एक मैक म्यूट कर एड्रेस दिया इसका अपना असाइन ना, होगा जब हम इन पे म्यूट आईपी हटो। एड्रेसेस इनको कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट? क्या? लेकिन ये यस, मैक एड्रेस हम मतलब ठीक है फिर इसको रख मतलब रहे हैं, गुड आता नाइट। क्यों है मैक एड्रेस? मतलब किसके रिलेटेड जस्ट होगा? अ किसी सेकंड, मीडिया मीडिया के जस्ट अ रिलेटेड होता है क्या सेकंड, ये? आप जस्ट अ सेकंड। अभी बीच में ना ठीक है। कुछ डिस्टरबेंस है, एक मिनट में उनको म्यूट कर दूं। आई गेस राहुल क्या? सिंह का माइक और राहुल सिंह। ठीक है, हाँ नवीन आपका क्वेश्चन है, अमरजीत का क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताएं। मेरा है ना, अमरजीत का। अमरजीत का, ठीक है, तो मैं नवीन को म्यूट कर देती हूँ। हाँ, हाँ जी बोलिए, एक मैम, मिनट। जैसे अभी आपने मैक एड्रेस का बोला है कि एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, और जैसे अभी आपने नेटवर्क में अभी दो पीसीस को कॉन्फ़िगर किया आईपी एड्रेसेस, देन उसके बाद हम्म उसका जो मैक एड्रेस वहाँ पे शो हुआ, राइट? हम्म मतलब ये किस बिहाफ पे जो है मैक एड्रेस वहाँ पे वो शो करता है? मतलब ये क्यों होता है वहाँ पे, मतलब नेटवर्क में क्यों होता है ये? एक ओके। जैसे आपने बोला कि एक यूनिक फिजिकल आइडेंटिफायर है, राइट? मतलब किस चीज का आइडेंटिफायर है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, श्योर, मैं आपको बताती हूँ अमरजीत। तो क्या होता है, आई विल गाइड यू द स्टेप बाय स्टेप, तो आपको डिटेल समझ आएगा। ठीक है, जी, अब यू जी। कैन सी हाउ द स्विचेस, ओके, लर्न्स द मैक एड्रेस। तो आपको इसमें मैं स्टेप दिखाती हूँ इसके, जी। स्टेप बाय स्टेप वी कैन राइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि दे विल बी गोइंग टू हैव द फ्रेम। ठीक है, तो switches learn the MAC address through a process of MAC learning, MAC address learning। ठीक है, तो MAC ठीक है। address learning ये कैसे करते हैं? फ्रेम जो है स्विच के ऊपर आता है, फ्रेम अराइव्स एट द स्विच, तो डिवाइस क्या करती है? फ्रेम क्या सेंड्स होता द है? डाटा फ्रेम टू द स्विच। ठीक है, तो मैम उस फ्रेम क्या फ्रेम में होता क्या है? होता है? हाँ, फ्रेम क्या होता है? फ्रेम कंटेन्स योर सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, उस फ्रेम में होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। अब मैंने जैसे ये स्विच लिया, ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे एक पैकेट दिखाती हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। मैंने पैकेट को ड्रॉप किया और मैंने सिमुलेशन को चलाया, तो हर एक लेयर के ऊपर ना डिफरेंट थिंग्स ऑपरेट करती हैं। अब जैसे स्विचेस के टाइम पे फ्रेम्स भी है, ठीक है, और किसी टाइप पे कुछ और ऑपरेट करेगा, तो दैट इज द थिंग। तो आई विल शो यू। तो जहां पे मैं गई, ठीक है,
तो अभी आपने देखा हमारे पास लेयर नंबर 1 2 है, ठीक है, यहाँ पे लेयर्स दिख रही हैं आपको सभी को, जी ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने लेयर नंबर 3 तक दिखाया कि हाँ ये मेरा सोर्स आईपी है ये वाला और डेस्टिनेशन आईपी है ये वाला, ठीक है, यही दिया ना आपने 10 1 और यस 10 2, ठीक है। अब डेफिनेटली। ये दो आईपी किस में स्टोर है, फ्रेम में, ठीक है। तो फ्रेम जब यहाँ पे अराइव्स होगा स्विच पे, ठीक है, तो क्या होगा, जो फ्रेम होगा उस पे कंटेन होगा आपका सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। फिर वो स्विच जो है वो लर्न करेगा सोर्स मैक एड्रेस और रिकॉर्ड रखेगा और तब वो स्टोर कर देगा उस टेबल में। अब इसका एक टाइमर भी होता है गाइस, कुछ टाइम के बाद ये आपकी एंट्रीज ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है, जो स्विच इरेज कर देता है, मैक एड्रेस अभी आपका गायब हो जाएगा कुछ सेकंड्स के बाद, बिकॉज दे टेम्परेरी स्टोर्ड द थिंग, ठीक है। तो ये मैम आपका इसका ना, मतलब है कि जो जी आप फॉर एग्जांपल अगर आप PC 1 से PC 2 तक जैसे जैसे यहाँ पे PC 0 है और PC 1 है, अगर आप हाँ पीसी जी, जीरो से कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो थ्रू स्विच, आप इसको भेज रहे हो यहाँ पे, तो जो कुछ हाँ जी, टाइम के लिए वो डेटा को वहाँ पे रीड करेगा, वो कुछ डेटा, जो डेटा वहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर रहेगा, वो उसको मैक एड्रेस हम बोलेंगे, राइट? राइट। हम्म, और उसके बाद वो इरेज हो जाएंगी एंट्रीज कुछ टाइम के बाद, बिकॉज द टेम्परेरी दे लर्न, दिस इज द फुल कंसेप्ट ऑफ स्विच लर्न्स द मैक एड्रेस, ठीक है, जिसे हम मैक एड्रेस लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना जैसे एंड पता एट होना चाहिए। वन टाइम स्विच कितने मैक एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, मतलब ओके, कलेक्ट कर एंड रहा है मैक एड्रेस? हाउ मेनी मैक एड्रेस दे लर्न, राइट? यस, एट वन टाइम, लाइक इट स्टोर्स राइट, फॉर सम टाइम। हाँ ओके, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो you can say they can learn multiple MAC addresses. There is no fixed limit, like I can say. तो ओके। डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास स्मॉल होम स्विच आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपका स्मॉल या होम स्विच है वो 100 से फ्यू थाउजेंड मैक एड्रेसेस तक लर्न कर लेगा, टिपिकली 1000 और 8000, राइट। अगर आप जैसे डाटा सेंटर वाला एंटरप्राइज स्विच यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके टेंस ऑफ थाउजेंड्स में मैक एड्रेस लर्न कर लेगा, जैसे नियर बाय आप लगा लो 32,000 प्लस 1,28,000 प्लस, इतनी रेंज में, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच की उतने मैक एड्रेसेस दे कैन लर्न। मैम मैक एड्रेसेस यूजफुल नहीं होते ना हमारे लिए, फिर इसका मतलब है वाई जैसे मैक कि हम एड्रेस? आईपी जैसे कि अभी हम आईपी एड्रेसेस किसी भी, अगर हम किसी को अपना ये एक्सेस देना चाहते हैं, तो आईपी एड्रेस हम उनको शेयर करेंगे, तो मैक एड्रेसेस का जो वहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा ना फिर। देखो, मैक एड्रेसेस इज ऑल्सो यूजफुल इन नेटवर्किंग, वाई, बिकॉज उसी के तो हेल्प से आपको डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन मिलेगी ना, यूनिकली आइडेंटिफाई द डिवाइस। अब ये हार्डवेयर वाला है आपका सिस्टम, आईपी एड्रेसेस तो यू आर गिविंग ना, ओके ओके ओके। दिस इज द हार्डवेयर बेस, तो इट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द लोकल नेटवर्क, तो गोट एक इट। ये फिजिकली दिया जाता है, मतलब राउट इसको, राउट स्विच को, सॉरी। एग्जैक्टली exactly. तो मैं आपको एक ओके। सिंपल टेबल बनाऊं, दैट विल बी बेटर, आपको मैक और आईपी एड्रेसेस के वर्सेस पता लग जाएंगे कि यस वो क्या श्योर। और वो क्या है ना, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ओके अभी ओके। मैं आपको एक टेबल बना के दिखाती हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये देखो, अभी हमने यहाँ पे जाते हैं और फर्स्टली वी लर्न व्हाट इज इट, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सिंपल करते हैं, पहले हम हाँ लिखते हैं हाँ मैक definitely। एड्रेस, है ना। जी जी। तो मैक एड्रेस जो है हमारा वो क्या है, ठीक है, हु यू आर, ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो डिवाइस आइडेंटिटी, ठीक है। अब आईपी एड्रेस लिखती हूं मैं, ठीक है। आईपी एड्रेस हमें बताता है वेयर यू आर, आप समझ रहे हैं डिफरेंस, जी जी। जो हमें बताएगा डिवाइस की लोकेशन, क्योंकि आप उसको मैन्युअली दे रहे हो ना,
अब जब आपका कोई लैपटॉप या कुछ भी बनता है या कुछ भी आप डिवाइस बना रहे हो, तो उसमें एक हार्डवेयर एड्रेस प्रॉपर दे देते हैं उसको, जो एक यूनिक डिवाइस की आइडेंटिटी हो जाती है कि हाँ ये चिपसेट नंबर है इसका, है ना। वो आपका मैक एड्रेस आप कंसीडर करो। आईपी एड्रेस आपका ये है जो आप मैन्युअली देकर या आपको एलोकेट हो रहा है डीएचसी पे, तो वो हमें ये बताते हैं कि कहाँ लोकेट है ये चीज। This is the difference between your MAC address and the IP address. You got it? या समझ आया सभी को कि क्या है ये डिफरेंस? ठीक है। जी तो अभी अभी मेरे को एक और बात बतानी है। ये आपका फिजिकल एड्रेस है जो मैंने बोला हार्डवेयर वाला, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल एड्रेस है और इसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि इसमें लॉजिक बिल्डिंग भी करनी है, सबनेटिंग, एड्रेसिंग, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू इन द आईपी, ठीक है। दिस इज योर फिजिकल एड्रेस, दिस इज योर लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। गॉट इट? सभी को समझ आया? ठीक है। मैम, कैन यू अब प्लीज म्यूट? अ, नॉइस आ रही है किसी की। ओके, मैं उनको म्यूट करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ। जिसको क्वेश्चन है दे कैन आस्क, ओके। ठीक है, अभी एवरीबडी इज इन म्यूट। ऑलराइट, सो वी कैन स्टार्ट। ठीक है, तो आई वॉज सेइंग कि हाँ, तो मैक एड्रेस हु आर यू, फिजिकल एड्रेस है, आईपी एड्रेस वेयर यू आर, ठीक है, दैट इज द लोकेशन। एंड अदर देन दैट कि आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन असाइन करता है। अभी हमें पता है आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है, चलो बताओ मुझे सारे। मैम वो तो जिसके पास उसका कंट्रोल रहेगा तो वही करेगा ना, ह्यूमन हम साइन। बोल देते हैं डीएचसीपी कर DHCP. देगा, है ना। ओके। यस. आईएसपी कर देगा, सर्विस प्रोवाइडर कर देगा हमें आईपी एड्रेस एलोकेट, या हम मैन्युअली भी कर देंगे अगर हमें खुद बनाना है कुछ डायग्राम, तो नेटवर्क की हेल्प से वो भी कर सकते हैं। अब ये फिजिकल एड्रेस कौन असाइन करता है, यू जस्ट लेट मी नो, थिंक ओवर इट, यू कैन सर्च ऑल्सो इफ यू नीड इट। हु असाइन द फिजिकल एड्रेस, दैट मैक एड्रेस, मुझे बताओ, फिर आपको आइडिया लगेगा। हाँ, कौन? मैन्युफैक्चरर जो जिसने करेक्ट, बनाया। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो आपको समझ आया। तो ये मैक एड्रेस जो है ये ना मैन्युफैक्चरर असाइन करता है और हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये यूजुअली परमानेंट ही होता है, ओके ओके। ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट होता है। आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं गाइस कि नहीं, क्या लगता है आपको? यस। वी कैन चेंज, आई गेस ये चेंज कर कॉल टू सकते द। हैं, ठीक है। तो मैक एड्रेस कौन यूज करता है, कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज करती है मैक एड्रेस? लोकल एरिया नेटवर्क. नो, डिवाइस, आई एम आस्किंग द डिवाइस। स्विच. करेक्ट, तो स्विच। स्विच यूज करेगी मैक एड्रेस लर्निंग, फ्रेम फॉरवर्डिंग, सो मेनी थिंग्स, राइट। और आईपी एड्रेसेस कौन यूज करता है फिर? राउटर। और एंड राउटर। यूज करता है, ठीक है। अब मुझे एक और बात बता दो इसके साथ, कौन सी लेयर पे स्विच यूज होता है? लेयर टू। लेयर लिंक। L2. लेयर पे, ठीक है। राउटर कौन सी लेयर में यूज होता है? लेयर L3. लेयर नंबर लेयर 3 पे, ठीक है। तो मैंने अभी एक डायग्राम खोला था यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, जिसमें मैंने एक तो ये लेयर वन क्या होता है मैडम? हाँ जी, अब देखो ये लेयर लेयर्स वन दिख क्या होता है? स्क्रीन पे, हब होता है, हब सब। ये आपको लेयर्स दिख रही हैं स्क्रीन पे, ठीक है। हब्स वगैरह तो कहीं पे भी लगा सकते हैं हम लोग। हाँ जी, पार्डन। देखिए, जो ये लेयर्स होते हैं ये आपकी ओएसआई मॉडल की लेयर्स होती हैं, लेयर्स नंबर 7, ठीक है। तो हर एक डिवाइस एक लेयर पे ऑपरेट करती है। अब मैंने आपको बताया लेयर नंबर 2 पे आपके क्या ऑपरेट करते हैं, स्विचेस, ठीक है। लेयर नंबर 3 पे आपका क्या ऑपरेट करेगा, राउटर, ठीक है। तो ये आपकी सारी लेयर्स की डिटेलिंग आई विल बी लेटिंग यू नो, तो आपको ये पता लगेगा कि इसका हर एक लेयर का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो व्हेन वी स्टार्ट विद योर ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तब आपको पता लगेगा कि लेयर्स एक्चुअली में वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो अब अगर आप रियल में भी देखो, यहाँ पे 2 लेयर्स तक वर्क हो रहा है, राइट। इससे ऊपर जा रहा है कहीं पर, आपको दिख रही है आउटपुट्स? अगर आप प्रीवियसली भी करो या नेक्स्ट स्टेप भी करो, आपको यहीं तक ही दिख रहा है, लेयर नंबर 1 और 2 पे फंक्शन हो रहा है, राइट। राइट गाइस? Yes. यस। लेयर नंबर 3 तक तो नहीं जा रहा ना कुछ भी, क्यों? क्योंकि इसमें राउटर ही नहीं है यहाँ पर,
तो लेयर नंबर 3 कैसे पार्टिसिपेट करेगी? वी नीड अ नेटवर्क डिवाइस ना, राउटर भी होना चाहिए। अगर लेयर 7 तक लेके जाना है तो हमें प्रोटोकॉल, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू कॉन्फ़िगर इन दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तब भी यहाँ पे लेयर 2 तक की इनपुट मिल रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने स्विच यूज किया है। ठीक है, क्लियर एवरीबडी अप टू देयर? व्हाट इज इट? समझ आया सभी को? यस गाइस, समझ आया सभी को? Yes, ma'am. ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द फिजिकल लेयर ऑल्सो। ठीक है, अभी गाइस जो सबसे पहले आपने देखी यहाँ पर, ठीक है, अभी हमने पैकेट पे क्लिक करा, ये क्या है? लेयर नंबर 1। ये देख रहे हैं आप लेयर नंबर 1 गाइस? जी दिस वन इज योर फिजिकल लेयर। ठीक है, तो व्हाट इज द फिजिकल लेयर? वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे सारी केबल्स की बात होगी। ठीक है, और अगर आप इस टूल में देखोगे हम कहाँ से केबल्स हमेशा लेते हैं, यहाँ से, कनेक्शन से। तो ये सारी आपकी तरह तरह की केबल है। अगर आप देखोगे इसके नाम दिख रहे हैं आपको, कंसोल केबल, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, कॉपर क्रॉस ओवर केबल, फाइबर केबल, सीरियल केबल्स, डीटी केबल, कोएक्सियल केबल, सो मेनी केबल्स, यूएसबी केबल्स। अब दिख रहे हैं सभी को इनके नेम्स जब मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ यहाँ पर? जी जी। ठीक है, तो अभी ये केबल्स के बारे में विल स्टडी, तो आपको आइडिया लगेगा ये क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो, नेटवर्क मीडिया वी हैव, in this network media you have different type of cables. ठीक है, that we use across the network to carry out the medium, ताकि हमारा जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का ट्रैवल है वो इजिली हो। राइट, अब कुछ मेटल वायर्स हैं जो विद इन द केबल्स यूज करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, कुछ पल्सेस ऑफ लाइट यूज करती हैं केबल्स। राइट, कुछ वायरलेस ट्रांसमिशन भी यूज करती हैं जो मॉड्यूलेशन के ऊपर, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी तो यहां से यहां पर आपका कनेक्शन होगा। राइट, तो अभी आपके पास यहाँ पर है कॉपर केबल, फाइबर केबल और वायरलेस केबल। राइट, यही आपको दिख रही है? राइट, यही दिख हाँ रही है वही आपको? दिख रही है। हाँ ठीक है, तो अभी वी हैव जस्ट सीइंग द पिक्चर। ठीक है, अब इन कॉपर केबल्स की पूरी डिटेल्ड स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कॉपर केबल्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉपर केबल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो व्हाट इज कॉपर केबल गाइस? तो कॉपर केबल्स में आपकी जो मेन कॉपर केबल्स आती है, पहली आपकी आती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स को आप जर्नली कहते हो इथरनेट केबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसी में भी दो प्रकार की केबल्स होती हैं। एक तो आपकी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। एक आपकी शील्डेड होती है, ठीक है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूटीपी भी कहते हैं, यूटीपी केबल। ठीक है, दूसरी आपकी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो इसमें आपकी जो केबल होती है उसको हम जर्नली एसटीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती हैं? ये आपकी कॉमन केबल्स हैं, कॉपर केबल्स हैं जो नेटवर्क्स में यूज होती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर्स एक्चुअली में। ठीक है, तो ये ट्विस्ट हो रखी होती हैं एक दूसरे के साथ ताकि जो इंटरफेरेंस है उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो अगर आप इसी में ही देखो, इन केबल के ही टॉपिक में देखो, तो यू हैव सो मेनी कैटेगरीज इन द नेटवर्किंग। लाइक अभी जो पुराना वर्जन था, कैटेगरी 3 की केबल हम यूज करते थे, जो ओल्डर और अब्सोल्यूट है, जनरली हमें 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड देती थी वो। ठीक है, अब आपके पास आ गई है कैटेगरी 5E की केबल्स, कैटेगरी 6E की केबल्स। ठीक है, और कैटेगरी 7 इज द लेटेस्ट, और कैटेगरी 8 भी लॉन्च हो चुका है इसमें। तो ये आपकी कुछ कैटेगरी की केबल्स हैं इसी के अंडर सेक्शन में। अब आपका जो स्पीड है वो चेंज होगा इसमें, जैसे ये 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड दे रही है, ये आपकी 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड देती है। ठीक है, और आपका अगले वाला 10 दे देगा, 25-40 गीगाबिट्स पर सेकेंड, इतने में स्पीड देते हैं। ठीक है, तो ये वाइडली आप यूज कर सकते हो, होम और ऑफिसेज में आपकी यही वाली केबल्स यूज होती हैं, मेनली कॉपर केबल्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं केबल्स आपकी,
तो मैं आपको कैटेगरी 3 केबल दिखाती हूँ जो ओल्डर वर्जन की वो है कॉपर केबल। तो ये मैंने क्लिक किया कैटेगरी की, तो ये आप देख रहे हो ट्विस्टेड सी हैं, एक के ऊपर एक केबल है ऐसे, राइट? आप देख रहे हो ये इसका हिसाब देख पा रहे हैं, एक के ऊपर एक के या Yes, yes. ट्विस्ट हो रखे हैं, राइट? तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल हम इसको इसलिए कहते हैं कि ट्विस्ट इसलिए हुई होती है कि ताकि इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना हो तब। तो अगर मैंने बताया ये आपका ओल्डर वर्जन है कॉपर केबल का, और ये मेनली आपको 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड देता है, और जनरली आप वॉइस और टेलीफोन लाइंस की 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लिमिट के लिए आप इसको यूज करते थे, ठीक है? अभी जो लेटेस्ट मॉडल है आपका कैटेगरी 8 का केबल आ गया मार्केट में, जो आपका इस तरीके से दिखते हैं केबल्स, ठीक है? तो अगर आप कैटेगरी ए की केबल सर्च करते हो तो ये आपको बता देगा कि ये बहुत अच्छी स्पीड देती है इथरनेट केबल, और मैंने बताया था आपको 25 टू 40 गीगाबिट्स पर सेकेंड की ये स्पीड दे देती है अच्छी। बैंडविड्थ इसकी इतनी होती है, ठीक है? मैक्सिमम डिस्टेंस ये इतना कवर अप कर लेती है, और शील्डेड ये भी होती है क्योंकि ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है? तो ये आप कहाँ पर फिट करते हो ये केबल? जनरली आपका जो टॉप ऑफ द रैक होता है ना, और एंड ऑफ द रो, जो डाटा सेंटर में टॉप ऑफ द रैक और एंड ऑफ द रो में आप ये कनेक्शंस को बिटवीन स्विचेस और सर्वर्स में यूज करते हो, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी इसमें, ठीक है? अब आपने देखा केबल्स की कैटेगरी 3, 4E, 5E, ये सब दिखा आपको? दिखा आपको गाइस, राइट? आपने देखा सभी ने कैटेगरी 8 केबल, कैटेगरी 3 केबल, 5V केबल, राइट? यस Yes. गाइस, ठीक Yes, है। ma'am. तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप मुझे एक मॉडल बताओ। मुझे बताओ आप कौन सा स्विच है जो कैटेगरी 8 केबल सपोर्ट करता है? Nexus 9000. ओके, हाउ अबाउट अदर्स? हाउ अबाउट अदर्स? यस, यस, किसने आंसर दिया था कि नेक्सस कौन सा मॉडल सपोर्ट करता है कैटेगरी 8? रजा मैंने दिया। आपने कौन सा मॉडल आप कह रहे हैं जो सपोर्ट करता है? अब मुझे एक बार दोबारा बताएं, नेक्सस का विच मॉडल? यस रजा, विच मॉडल इज इट जो आपने बताया है नेक्सस का सपोर्ट करता है कैटेगरी 8 को? यस, मेरे बैकग्राउंड हो रहे एक बार से म्यूट लगा, एक मिनट। अच्छा, आपका बैकग्राउंड नॉइस है, कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, और कोई किसी और की तरफ से आंसर? अमरजीत, सुपिंदर, आपको फाइंड आउट किया आपने कौन सा मॉडल सपोर्ट करता है कैटेगरी 8 केबल? राहुल? फाइंड आउट तो नहीं किया मैम, लाइक फाउंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके ओके, एक्चुअली हाँ, इसकी ऐसा आप नॉलेज नहीं है माइंड में ना, तो काम दैट्स करो। व्हाई इतना पता नहीं है। ओके ओके फाइन। नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप सर्च करोगे तभी आपको पता लगेगा चीजों के बारे में। दैट इज व्हाई आई आस्क यू क्वेश्चंस कि यू कैन फाइंड इट आउट एंड लेट मी नो द रेलेवेंट आंसर विद द टाइम फ्रेम, ठीक है? ओके, तो आप फाइंड आउट करो, मैं फिर आपको बताती हूँ। कैट केबल 8 क्या क्वेश्चन था आपका वो? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कैटेगरी 8 केबल आपको समझ आई कि वो ट्विस्टेड केबल है, ठीक है? अब मुझे यस ये जानना है कि कैटेगरी 8 केबल कौन से स्विच मॉडल में कंपैटिबल है कि मैं वहां फिट करके लगा के वर्क कर सकती हूँ। मुझे स्विच का मॉडल बताओ आप। नाइन्टी 300 सीरीज। हाँ, 9 विद सीरीज सुपिंदर? 9300। ओके, तो 9300 आप बोल रहे हो, ठीक है?
तो हम 9300 की सबसे पहले डाटा शीट देखेंगे, ठीक है। Okay. तो हमने 9300 सीरीज की जो भी आपने सर्च किया है, 9300 कोई भी उठा लेते हो, उसकी डाटा शीट देखते हैं, ठीक है। तो Okay. मैंने ये देखा, ये लिखा अच्छा अपना प्रोडक्ट ओवरव्यू, ठीक है, कैपेसिटी ये है इसकी, ओके ओके, ठीक है। तो इसमें मेरे को दिखना चाहिए कहीं पर भी कि कैटेगरी 8 मेंशन्ड हो, कि वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो विल सी, Okay. ठीक है। तो ये टेक्निकली इन्होंने बोला है, अच्छा ये सब है, एंड दैट इज देयर विद द, वन सेकेंड, ओके, विद द स्पीड्स, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो विल ऑल्सो चेक डायरेक्टली ऑल्सो। तो यहाँ पे डाटा शीट इसकी थोड़ी डिफरेंट फॉर्मेट में खुली है, ये डाउनलोड पीडीएफ करने के लिए बोल रहा है हमें, ओके। तो you have find it out the 9300 series category 8, right? Yes. And what is RJ45 ports? Okay, I'll come to that part once I'll complete it, this one, okay. Yeah, sure. Okay, तो they will be telling us कि जो Cisco का 9300 series है, which you have find it out, ठीक है, they Yes. have the speeds on their copper ports which is compatible with category 6A के साथ, और higher cabling भी support करती है। बट वो कह रहा है कि कैटेगरी 8 केबल कैन बी यूज, बट देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट एज द पोर्ट्स ऑन दी स्विचेस व्हिच डू नॉट ऑपरेट ओवर द दिस स्पीड्स, ओके। Okay. तो आई रिकमेंड यू दैट मॉडल जो आपका 3000 सीरीज के नेक्सस हैं, दे विल सपोर्ट दैट कैटेगरी 8 केबल्स फॉर श्योर, ठीक है। तो Okay. यू कैन फाइंड इट आउट द डाटा शीट, दिस इज द लेटेस्ट वन, तो दे विल सपोर्ट इट आउट, ठीक है। तो आपका 3000 जो सीरीज है वो आपका नेक्सस का कैटेगरी 8 का केबल सपोर्ट करता है, जो कि लेटेस्ट वन है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द वंस आप सी कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग है हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका हायर लेवल्स पे व्हेन यू लर्न एंड डू आउट द थिंग्स, आपको ये प्रॉपर और ज्यादा क्लैरिटी विजन आता रहेगा, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि केबल्स क्या हैं। अब देखो यहाँ पे केबल 1.2 फीटर, आप देख रहे हो कितनी सारी केबल्स नजर आ रही हैं एक्टिव पैसिव मीटर्स में। तो ये सब आपकी डिटेलिंग है रिगार्डिंग द केबल्स, ठीक है। तो हियर द कॉपर केबल्स दे विल बी गोइंग टू यूज्ड, ठीक है। तो इसी के साथ कॉपर केबल के साथ आपकी तरह तरह की केबल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोएक्सियल केबल्स होती हैं, ठीक है। ये आपने कैटेगरी देखी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो आपकी कोएक्सियल केबल क्या होती है, एक ना कॉपर सुपर कंडक्टर होता है इन द सेंटर विच इज इंसुलेटेड विद लेयर एंड मेटल शीट, ठीक है। तो हियर दे यूज फॉर योर इथरनेट स्टैंडर्ड, ब्रॉडबैंड के लिए, केबल के लिए, इंटरनेट के लिए, सीसीटीवी और टीवी के लिए ना, यू जनरली यूज दिस कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। तो अगर आप देखो इसके कुछ रिसेंटली स्टैंडर्ड्स लॉन्च हुए हैं 2026 में, जो रेडियो ग्रेड के हैं 61159, जो आपको ये फ्रिक्वेंसीज दे रहे हैं, लॉन्ग रन, बेस्ट यूज केसेस फॉर द सेम, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं कि रियल में कोएक्सियल केबल कैसी दिखती है, तो योर कोएक्सियल केबल विल बी लुक लाइक दिस वे। तो आई विल शो यू द इमेजेस। तो हियर वी जस्ट इरेज द स्पेसिफिकेशंस एंड ओनली रन दिस। तो ये आपकी इस तरीके से दिखती है कोएक्सियल केबल, देख रहे हैं, जो इंसुलेटेड होती है मेटल के साथ, मेटल शीट और इंसुलेटेड लेयर होती है इस पे। तो आप देख सकते हो इस तरीके की आपकी कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। इसी में आपके नॉन इथरनेट, हम इसको नॉन इथरनेट केबल भी कहते हैं, ठीक है। ये जनरली टेलीफोन लाइंस, शील्डेड केबल्स के साथ यूज करते हैं हम इसको। मगर अभी ये यूज नहीं कर रहे हैं ना मैडम? अभी हम इतना ज्यादा नहीं यूज करते क्योंकि कुछ लेटेस्ट वर्जन और आ गए तो हम उन्हीं पे रेले हैं। बट कुछ जगहों पे वी कैन यूज, जहाँ पे थोड़ा ओल्डर मतलब टच है, अभी भी स्टिल दे आर यूजिंग दीज वेज आउट। वो वीसैट वगैरह पे हाँ ये यूज हो रहे हैं, मगर रेयर कंडीशंस में हो रहे हैं, वीसैट पे हो रहे हैं। हाँ जी, उस पे हो रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही आपकी गाइस फाइबर केबल्स हैं, मतलब सो मेनी केबल्स आर देयर, ठीक है। तो फाइबर केबल अगर आप सर्च करोगे तो यू विल आल्सो गेट द पिक्चर्स हाउ इट विल बी गोना लुक लाइक। तो इट विल बी गोना लुक लाइक दिस वे, ठीक है। अब इनके कलर्स की पैटर्निंग भी, अगर आप देखोगे ये पिक्चर, अगर आप देख रहे हो, ये डाटा सेंटर की पिक्चर ली हुई है आपकी, ठीक है। अब डाटा सेंटर की पिक्चर जब आपके ना, ये देखो केबल्स कैसे कनेक्टेड हैं, नीचे से यहां से आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, ये बैक व्यू है, बैक व्यू, रियर व्यू ऑफ दैट डाटा सेंटर इक्विपमेंट्स। तो ये राउटर या स्विच है, तो उसके अंदर कैसे क्लबिंग और कनेक्शन किए हुए हैं ये उन्होंने बताए हुए हैं, जस्ट अ फॉर्मेटिंग वे, मतलब पिक्चर की हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे ही Ma'am, do तरह we have to remember all the cables? यू हैव टू रिमेम्बर फाइबर, कॉपर, और जो भी हम सीसीएनए में यूज करें वो तो केबल्स आपको पता होनी चाहिए। Okay. Ma'am, for interview purposes, we should know the differences, or we should have to learn every आपको cable. आपको डिफरेंसेस लुक पता होना चाहिए, कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या लेटेस्ट वर्जन्स हैं। लेटेस्ट Okay. वर्जन्स गाइज इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि जब आप सीसीएनपी सीसीआई में जाओगे, ठीक है, ओल्डर तो मैं आपको भी पढ़ा दूंगी कि सीसीएनए इज अ ओल्डर थिंग, कि मतलब यहाँ पे कौन सी केबल से आपका सब काम हो जाएगा, बट अगर आपको लेटेस्ट मॉडल्स पता है ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे फ्यूचर Okay. के लिए भी, ठीक है। हमने केबल्स ये सारी लर्न करनी है, जितनी ज्यादा लर्न करेंगे उतनी कम है, बट हमें पता सबके बारे में होना चाहिए, दो दो फंक्शन तो हर एक केबल के बारे में पता होने चाहिए, ये केबल है तो कहाँ यूज कर रहे हैं हम, ठीक Okay, है। fine. तो ऐसे हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका केबल्स का सिनेरियोज है, ठीक है। तो शील्डेड केबल होगी, कोएक्सियल केबल होगी, ठीक है। अभी हम फाइबर केबल भी देखते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव सीरियल केबल्स, इसलिए हम यूज करते हैं कि हमें लॉन्गर डिस्टेंसेस तक अपना डाटा पहुंचाना है, तो हमें सीरियल केबल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी केबल्स हमें एक एक करके पता होनी चाहिए। तो आज आप ये होमवर्क भी करना, सारी केबल्स के नोट्स बनाना आप, ठीक है। कौन सी केबल क्या काम करती है, कहाँ यूज हो रही है, अगर आपने डाटा सेंटर में जाना है तो ये केबल वहां पे कौन सी कैटेगरी का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, तो आपको यू शुड प्रॉपर हैव द लिस्ट फॉर द सेम, ठीक है। मैम टोटल हमारे पास कितने टाइप्स की केबल्स होती हैं? टोटल टाइप्स ऑफ केबल्स, ओके। तो यू वाज आस्किंग इन द टर्म्स ऑफ मतलब सीसीएनए और सीसीएनपी लेवल तक। Ma'am, like we will go through the cables and their categories. That's why I'm asking कि total कितने types के हमारे पास cables रहते हैं? ओके तो देखो इसमें जो रहती हैं, एज पर माई नॉलेज देयर आर कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल्स, क्रॉस ओवर, रोल ओवर, फाइबर में आ गई, एसएमएफ, मल्टी मोड, तो सीरियल केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, यूएसबी वेरिएंट्स, कंसोल केबल्स। तो टिपिकली वी जर्नली हैव 10 to 11 कैटेगरीज ऑफ द केबल्स जो हमें Okay. पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द Okay. सीसीएन एंड सीसीएनपी लेवल। Okay. Okay, fine. बट उसी में ही ना पार्ट्स हैं सुपिंदर। तो जी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया आपका फाइबर केबल का, ठीक है। तो जी फाइबर केबल के अंदर दो तरह के मॉडल हैं, एक तो सिंगल मोड फाइबर मिल जाएगी या मल्टी मोड फाइबर मिल जाएगी, जिसको हम एमएमएफ और एसएमएफ की हेल्प से कहते हैं, ठीक है। तो ओके हर एक में ऐसे कैटेगरीज हैं, क्रॉस ओवर हो गई, रोल ओवर केबल हो गई, तो ऐसे वाला। तो अगर मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, तो फाइबर ऑप्टिक केबल है ना जो आपकी, ठीक है। तो यस इसमें ना आपका क्या रहता है, दो तरह के आ जाते हैं, एक मैं आपको दिखाती हूँ, एसएमएफ एंड एमएमएफ, ठीक है। ये इसके अंडर के ही पार्ट है, ठीक है। तो अब जब ये एसएमएफ वाली केबल है वो टाइनी कोर है, 8 to 9 यूनोम ये रहती है, सिंगल लाइट पाथ्स अनेबल हाई बैंड, दीज आर द डिस्टेंसेस दे कवर, ठीक है। अब ये जो सिंगल वाली है ना, ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, 10 किलोमीटर से आगे तक के। ओके ये लेजर यूज करती है, सिंगल मोड फाइबर वाली नोट केबल फाइल इसी के ओके अंदर है। हाँ इसी के अंदर ये कैटेगरी है, ठीक है। और ये वैन में यूज होती है, वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। ओके अब मैं बात करूं एमएमएफ की, तो एमएमएफ आपकी शॉर्ट डिस्टेंस कवर अप करती है, जनरली आप 550 मीटर के लगभग लगा लो, ठीक है। और एलईडी ये यूज करती है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क और डाटा सेंटर में हम जर्नली यूज करते हैं एमएमएफ वाली केबल, ठीक है। तो ये आपकी इमेजेस भी देख सकते हो, ये देखो सिंगल मोड ऐसी दिखती है येलो कलर वाली, और एमएमएफ ऐसी दिखती है, और मैं इसकी आपको फोटो डाटा सेंटर में भी दिखाती हूँ, ठीक है।
तो SMF और MMF आप इन डाटा सेंटर यूज करो तो आपको दिखेगा ये येलो कलर की और ब्लू कलर की केबल, जो अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, ये आपकी होती हैं। तो येलो वाली कौन सी वाली होती है? SMF वाली, ठीक है। ब्लू कलर वाली आपकी MMF वाली होती हैं केबल्स, ठीक है। Okay. और ये ऑरेंज कलर क्या होता है मैडम? ऑरेंज कलर भी है ना? कहाँ पर ऑरेंज? ये वाला ऑरेंज, ये भी मल्टी मोड फाइबर है, ऑरेंज वाला MMF, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी केबल्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको दिखा दी है इन्होंने। तो जर्नली इन्होंने 3 कलर्स अभी लॉन्च है आपके, ऑरेंज, ब्लू और येलो। येलो जर्नली SMF के लिए है, ये 2 MMF वाली हैं, मतलब ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है। क्लियर गाइस? अभी तक का समझ आया आपको कंटेंट? व्हाट इज इट? आई थिंक अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से, किसी को हैं। कोई मुझे RJ45 के बारे में भी पूछ रहा था, आई थिंक, राइट? या मेरी अमरजीत का। हाँ, ठीक है। Yes. तो RJ45 क्या होता है डियर? RJ45 आपका ना रजिस्टर्ड जैक होता है, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड कनेक्टर होता है आपका, ठीक है। कनेक्टर हम कहाँ पे यूज करते हैं? इथरनेट नेटवर्क केबल्स के लिए। इट इज जनरली यूज फॉर योर इथरनेट नेटवर्किंग केबल्स, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट इट इज स्पेशली ट्विस्टेड कॉपर केबल्स होते हैं ना, उनके साथ ये रजिस्टर्ड जैक आप यूज करते हो, ठीक है। तो अगर आप ये RJ45 को देखते हैं ना, तो इसमें आपकी 8 पिन्स होती हैं, ठीक है। तो हर एक पिन जो होती है ना, वो डाटा सिग्नल्स को कैरी करती है अपने साथ, हर एक पिन 8 पिन्स में, ठीक है। तो ये आपके इथरनेट पोर्ट्स PC में, स्विचेस में लगते हैं, तो ये आप RJ45 के थ्रू ही लगाते हो। पर ये इसका एक स्टैंडर्ड है। ये ना कलर्स जो होते हैं ना इनके पिन के 1 to 8, ये कलर डिस्क्राइब करते हैं। जैसे 1 है वो आपका व्हाइट या ग्रीन ही रहेगा, ठीक है। जो सेकंड पिन का कलर है वो आपका ग्रीन रहेगा, और थर्ड पिन का आपका रहेगा व्हाइट या ऑरेंज, ठीक है। और जैसे फोर्थ पिन है वो आपका रहेगा ब्लू कलर, फिफ्थ पिन आपका रहेगा व्हाइट कलर। तो इस तरीके से इसकी ना कलर फॉर्मेटिंग भी होती है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड पे है, जैसे आपकी वायरिंग स्टैंडर्ड्स आप T568 के साथ कर रहे हो गवर्नमेंट या ओल्डर इंस्टॉलेशन, तो आपका ये कलर फॉर्मेट रहेगा। अगर आप कमर्शियल नेटवर्क्स के साथ कर रहे हो तो आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द केबल टाइप फॉर द सेम, यू कैन कंसीडर। मैम जो ये RJ45 होता है, जो आप इसकी कलर्स डिस्ट्रीब्यूशंस बता रहे हो यहाँ पे, ये हाँ फॉर जी, एग्जांपल अगर हमारे इथरनेट्स में 8 पिंस है, मतलब पिंस तो इसमें होती हैं, अगर हम इथरनेट इसके हाँ, साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ वो जी, इथरनेट का जो सिंगल सिंगल केबल रहेगा उसके अंदर, तो वो हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप ये सर्च कर सकते हो इसके लिए, आप लिखो T568A, ठीक है। T568A इन द RJ45। तो अब आप देखोगे इसमें ना आपका ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट या ओल्डर इंस्टॉलेशन है ना, तो उसमें आपका ये यूज करते हैं 568। और ये जो B वाला है ये कॉमन है, ये कमर्शियल नेटवर्क्स के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे ना कलर, ये देखो ग्रीन व्हाइट है, पहला, दूसरा ग्रीन है, तीसरा व्हाइट ऑरेंज है, फिर फोर्थ ब्लू है, देख रहे हो आप? तो ये आपके इसके कलरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ठीक है। तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। मतलब 568 तो जनरली आपका गवर्नमेंट ओल्डर वायरिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए यूज करता है। 568B वाला जो आपका कमर्शियल नेटवर्क्स के लिए जनरली यूज करता है, ठीक है। क्लियर? सभी को समझ आया अभी तक का कंटेंट, व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार? ठीक है। तो गाइस वी हैव इट आउट द डिस्कशन टुडे फॉर द केबल्स, ठीक है। तो अभी हमने वी हैव टच टिल दिस, वन सेकेंड, yeah. So network representations, yes, tomorrow guys there is no class because I have to go outside, okay. Day after tomorrow you have the class, ठीक है। Friday को you have the class, tomorrow you don't have, ठीक है। तो we'll start with your network representations। आप जो है आज क्या करेंगे, आप आज सारी केबल्स के बारे में स्टडी करेंगे, और डे आफ्टर टुमारो आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस फॉर द केबल्स। तो हम देन विल स्टार्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशंस, ओके। Clear everybody? क्लियर। Yes. Okay, all right. Thank you so much guys for participating. Take care of yourself. See you day after tomorrow. Take care. Bye bye. See you guys.
Thank you. Bye. Thank you so much, guys. Bye bye. Bye. Bye.